اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بنیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یورپ کے ایک چھوٹے سے امیر ملک بوہیمیا، جسے اب چیکو سلواکیہ کہتے ہیں، اس پر ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا۔ ایک دن گاؤں کی ایک بوڑھی عورت محل میں آئی اور سیدھی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بڑھیا کے پاس ایک ٹوکری تھی اور ٹوکری میں ایک بام مچھلی تھی۔ بڑھیا نے بادشاہ کو بتایا کہ جو کوئی بھی اس مچھلی کو پکا کر کھائے گا وہ دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا اور ان سے باتیں کر سکے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ مچھلی کھانے سے اس میں ایک ایسی صفت پیدا ہو جائے گی جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے نوکر جان سے کہا کہ سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا اس بڑھیا کو دے دیا جائے اور مچھلی کو فوراً پکوا کر کھانے کے لیے پیش کیا جائے۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ پرندوں اور جانوروں کی باتیں سمجھنے کی صفت کسی اور میں بھی پیدا ہو، اس لیے اس نے جان سے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا سی بھی مچھلی چکھنے کی کوشش کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جان نے سوچا کہ یہ مچھلی جس کے لیے بادشاہ نے اتنی بڑی رقم دی ہے کوئی عام مچھلی نہیں ہو سکتی، ضرور اس میں کوئی خاص بات ہے۔ جب مچھلی پک کر تیار ہو گئی تو جان سے رہا نہ گیا اور اس نے ایک نوالا کھا لیا۔ نوالے کا کھانا تھا کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگی، تھوڑی سی ہمیں بھی دو، تھوڑی سی ہمیں بھی دو۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ کمرے میں تو اس کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں سوائے چند مکھیوں کے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ دراصل ان مکھیوں کی ہی آواز تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو کی مچھلی تھی، اس لیے بادشاہ نے اتنا سخت حکم دیا تھا۔ اس نے ایک اور ٹکڑا کھا لیا اور پھر مچھلی کی پلیٹ بادشاہ کو پیش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ 2 گھوڑے سواری کے لیے تیار کیے جائیں، ہم باہر گھومنے جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ بادشاہ تو اس لیے باہر جانا چاہتا تھا کہ وہ بڑھیا کی بات کو آزمائے کہ کیا بام مچھلی کھانے کے بعد جانوروں کی باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں یا نہیں، لیکن جان بھی مکھیوں کی باتیں سمجھنے کے بعد اور جانوروں کی باتیں سننا چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی باہر جانے کے لیے بڑا بے چین تھا۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار شہر سے باہر نکل گئے تو جان کا گھوڑا ہنہنا کر بادشاہ کے گھوڑے سے بولا، آج میں بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر سے کود جاؤں۔ اب بادشاہ کا گھوڑا نتنے پھڑ پھڑا کر بولا، اس پہاڑ کے اوپر سے کود جانے کو تو میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو یہ جو بیوقوف بڈھا میرے اوپر سوار ہے اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی۔ جان کا گھوڑا بولا، خوب زور سے پٹک دینا اسے تاکہ اس سے تمہاری جان چھوٹے اور کسی جوان کو سواری کرنے کا موقع ملے۔ یہ سنتے ہی جان کی ہنسی نکل گئی، لیکن اسے فوراً ہی یاد آیا کہ گھوڑوں کی یہ باتیں تو بادشاہ نے بھی سنی ہوں گی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹ بند کر لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بادشاہ نے گھوم کر شک بھری نظروں سے جان کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ جان نے کہا، کچھ نہیں یاریجا۔ بادشاہ نے گھوڑے کا رخ محل کی طرف پھیرا۔ گھوڑے کی بات سن کر نہ تو اسے گھوڑے پر اعتبار رہا تھا نہ جان پر۔ وہ گھوڑے سے خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی دن اسے مار ڈالے گا۔ جان پر اسے یہ شک تھا کہ شاید اس نے بھی بام مچھلی کا گوشت کھا لیا ہے۔ محل میں واپس آ کر بادشاہ نے جان کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈے پانی کی بوتل سے ایک گلاس بھر کر دے، اگر ایسا کرتے ہوئے ایک قطرہ بھی باہر گر پڑا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جان نے بڑی احتیاط سے پانی گلاس میں ڈالنا شروع کیا۔ ابھی گلاس پورا نہ بھرا تھا کہ کھڑکی میں سے 2 چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئیں۔ وہ دونوں کسی بات پر لڑ رہی تھی۔ جان ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ ایک چڑیا نے دوسری سے کہا، ان میں سے ایک سونے کا بال مجھے دو۔ دوسری چڑیا چلائی، نہیں نہیں، یہ میرے ہیں، میں نے انہیں اس وقت اٹھایا تھا جب سنہری بالوں والی شہزادی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس پر پہلی چڑیا نے زور سے دوسری چڑیا کی چونچ ماری اور ایک سنہری بال زمین پر گر پڑا۔ جان نے سر گھما کر سونے کے بال کی طرف دیکھا تو ایسا کرتے ہوئے گلاس چھلک گیا۔ بادشاہ گرج کر بولا، میں نے کہا تھا اگر گلاس سے پانی گرا تو تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ اب میں صرف ایک شرط پر تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں کہ تم سنہرے بالوں والی شہزادی کو لے آؤ تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ جان بہت گھبرایا اور سوچنے لگا کہ سنہری بالوں والی شہزادی کو کہاں سے لاؤں۔ اس نے گھوڑا نکالا اور بغیر سوچے سمجھے اس کو ایڑ لگا دی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، جدھر گھوڑا جائے گا ادھر ہی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔
जान ने रास्ते के किनारे एक जगह आग जलती देखी जो किसी लकड़हारे ने लगाई थी। आग के पास ही चूंटियों का घर था और गर्मी से घबराकर बाहर निकल रही थी। जान ने गौर से सुना तो वो कह रही थी, या अल्लाह, किसी को हमारी मदद के लिए भेज दे, हमारे अंडे जल रहे हैं। उनकी नन्ही मुन्नी आवाजें इतनी दर्दनाक थी कि जान से रहा न गया। वो घोड़े से उतरा और दरख्त की एक शाख से आग चूटियों के घर से बहुत दूर कर दी। जान के इस नेक काम पर चूटियों ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर कभी उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो उसके काम आएंगी। जान इस बात पर मुस्कुरा दिया कि यह नन्ही सी मखलूक भला मेरी क्या मदद कर सकेगी। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि एक ऊंचा दरख्त दिखाई दिया जिस पर किसी कौवे का घोंसला था। कौवे के दो नन्हे बच्चे घोंसले से निकलकर जमीन पर गिर गए थे और एक दूसरे से कह रहे थे, हमें बहुत भूख लगी है लेकिन हम तो उड़ भी नहीं सकते, अपने घोंसले में कैसे जाए। जान को उनकी हालत देखकर बड़ा रहम आया। वो घोड़े से उतरा, कंधे पर पड़ा हुआ थैला उतारा, कौवे के बच्चों को उसमें डाला और फिर दरख्त पर चढ़कर बच्चों को घोंसले में रख दिया। कौवा और कवि ने उसका शुक्रिया अदा किया और बोले, अगर आपको कभी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो जरूर बुलाइएगा, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। जान घोड़े पर चढ़ा और आगे चल दिया। जंगल अब खत्म होने वाला था और घोड़ा एक झील की तरफ जा रहा था। झील का पानी बिल्कुल साकिन था और सोने की तरह चमक रहा था। जान इस ख्याल से झील के किनारे पर घोड़े से उतरा कि उसको पानी पिलाए। यहाँ उसने देखा कि दो मछेरे आपस में किसी बात पर लड़ रहे हैं। जान ने पूछा तो पता चला कि उन्होंने एक सुनहरी मछली झील में से पकड़ी है। एक मछेरा कहता है कि मछली मैंने पकड़ी है, दूसरा कहता है कि बेशक तुमने पकड़ी है लेकिन जाल तो मेरा है, इसलिए मछली मेरी है। मछली पानी के बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। जितनी देर मछेरे लड़ते रहे मछली तड़पती रही, वो मदद के लिए पुकार रही थी। जान को मछली पर रहम आ गया। उसने मछेरों से कहा, देखो भाई, मेरे पास जितनी रकम है वो तुम ले लो और ये मछली मुझे दे दो। मछेरों को और क्या चाहिए था, इस तरह उन्हें बाजार न जाना पड़ता और बैठे बिठाए रकम हाथ आ जाती। वो फौरन राजी हो गए और पैसे लेकर मछली जान के हवाले कर दी। जान ने मछली उठाई और उसे झील में फेंक दिया। मछली ने जान से कहा, इस मेहरबानी के बदले मैं आपकी मदद करूंगी, जब भी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मछेरे बड़े हैरान थे। एक तो जान ने मछली की इतनी बड़ी कीमत दी थी जो उस जैसी 10 मछलियों की कीमत के बराबर थी, पर कीमत अदा करने के बाद उसने मछली को वापस झील में फेंक दिया था। उन्होंने जान से पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाने का इरादा है। जान ने उन्हें तमाम किस्सा सुना दिया और फिर बोला, मैं अभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, मुझे तो ये भी पता नहीं कि शहजादी रहती कहाँ है। मछेरे बोले, वो इसी जजीरे के बादशाह की लड़की है जो इस झील के दरमियान में वाक़ है। वो देखो बादशाह के महल का मीनार जिसका अक्स पानी में नजर आ रहा है। शहजादी रोजाना सुबह सूरज निकलने के बाद इस मीनार पर चढ़कर अपने बालों को कंघी करती है। आपने हमारी लड़ाई खत्म करा के हमारे साथ जो नेकी की है उसके बदले में हम आपको कश्ती में सवार करके उस जजीरे पर छोड़ आते हैं, लेकिन सुनहरी बालों वाली शहजादी को पाने में आपको बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, क्योंकि उस बादशाह की 12 बेटियां हैं और सबकी शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के बाल सुनहरी हैं। जान ने उनका शुक्रिया अदा किया और थोड़ी ही देर में मच्छरों ने उसे जजीरे पर उतार दिया। यहाँ से एक ढलवान रास्ता एक ऊंचे किले की तरफ जाता था। जान किले के बाहर पहुंचा तो चौकीदार उसे अंदर ले गया। बादशाह एक खूबसूरत कमरे में बैठा था। शक्लो सूरत से बूढ़ा लेकिन मेहरबान नजर आता था। वो एक दरबारी के साथ शतरंज खेल रहा था। जान ने झुककर सलाम किया और अपने बादशाह के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। बादशाह मुस्कुराया और बोला, तुम शहजादी को ले जा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें कुछ काम करके दिखाने होंगे जो मैं कल तुम्हें बताऊंगा। एक काम कल करना होगा, अगर उसमें कामयाब हो गए तो फिर अगले दिन दूसरा काम और उससे अगले दिन तीसरा काम बताऊंगा। ये कहकर उसने शहजादे को आराम करने के लिए एक आरामदायक कमरे में भेज दिया और एक नौकर उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। जान बहुत थका हुआ था। उसने अब पेट भर के खाना खाया और फिर मीठी नींद सो गया। अगली सुबह सवेरे मुलाजिम ने उसे जगाकर कहा कि बादशाह उसका इंतजार कर रहा है ताकि उसे पहले रोज का काम बताया जा सके। जान बादशाह के हुजूर पेश हुआ तो वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने खिड़की में से एक चरागाह की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक दिन शहजादी उस चरागाह में सैर करने गई थी और वहां उसके गले का हार टूट गया, तमाम मोती बिखर गए और उसकी घास में खो गए। तुम्हारा काम यह है कि उन सब मोतियों को तलाश करके ले आओ। अगर एक भी मोती रह गया तो तुम कामयाब ना हो सकोगे। चरागाह में हर तरफ घास ही घास थी। जान ने हर जगह तलाश किया
घास की जड़ों में झांक झांक कर देखा, लेकिन उसे एक भी मोती नजर न आया। वो हसरत से बोला, काश इस वक्त वो चूंटियां मेरे पास होती जिनको मैंने जलने से बचाया था। अचानक एक बारीक सी आवाज आई, हम हाजिर हैं दोस्त, बताओ क्या काम है। जान ने घास पर नजर डाली तो जमीन पर दूर दूर तक चूंटियां ही चूंटियां थी। उसने उनसे अपनी मुश्किल बयान की तो वह देखते ही देखते घास में गायब हो गई और फिर मोती ला ला कर जान के कदमों में ढेर करने लगी। जल्द ही जान के कदमों में मोतियों का ढेर लग गया। चूंटियों ने उसे बताया कि अब और कोई मोती नहीं है। जान ने उनका शुक्रिया अदा किया और मोती उठाकर किले की जानिब चलने लगा। यकायक एक बारीक सी आवाज आई, ठहरो ठहरो। एक ऐसी चूंटी की आवाज थी जो लंगड़ा कर चल रही थी। उसकी एक टांग आग में जल गई थी, इसलिए वो तेज नहीं चल सकती थी। उसने एक छोटा सा मोती उठा रखा था और इस शहजादी के हार का आखिरी मोती था। जान ने वो मोती ले लिया और कुछ कुछ बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने मोती गिने तो वो बिल्कुल पूरे निकले। अगले दिन सुबह ही सुबह जान को बादशाह के हुजूर पेश कर दिया गया। बादशाह खिड़की से बाहर इशारा करते हुए बोला, कुछ अरसे की बात है, सुनहरी बालों वाली शहजादी इस झील में नहाने गई थी और वहां अपने सोने की अंगूठी खो आई। अब तुम ये अंगूठी ढूंढ कर लाओ। जान झील के किनारे पहुंचा और इधर उधर हाथ मारने लगा, लेकिन इतनी बड़ी और गहरी झील में अंगूठी भला कैसे मिलती। वो मायूस होकर बोला, काश इस वक्त सुनहरी मछली यहाँ होती। उसने कहा था कि मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएगी। उसका यह कहना था कि पानी में हरकत हुई और सुनहरी मछली तैरती हुई जान के करीब आई। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, हुक्म कीजिए। जान बोला, शहजादी की सोने की अंगूठी इस झील में गिर गई है और बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि वो अंगूठी हासिल करो, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। सुनहरी मछली बोली, मैंने अभी दो छोटी छोटी मछलियों को उस अंगूठी के लिए लड़ते देखा है, अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर उसने गोता लगाया और पानी में गायब हो गई। जान सोचने लगा, शायद ये सब ख्वाब है, लेकिन अभी वो ये सोच ही रहा था कि सुनहरी मछली वापस आ गई। उसके मुंह में अंगूठी देखकर जान खुश हो गया। उसने हाथ आगे किया तो मछली ने अपना मुंह खोल दिया और अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। जान अपने दूसरे काम की कामयाबी पर इतना खुश था कि लंबे लंबे डग भरता हुआ सीधा बादशाह के पास गया और अंगूठी उसके सामने रख दी। तीसरे दिन जान बादशाह के पास गया तो उसने कहा, आज तुम शहजादी के लिए जिंदा और मुर्दा पानी लाओगे। उन पानियों में अल्लाह ताला ने यह ताकत रखी है, अगर जिंदा पानी के छींटे किसी मुर्दा इंसान पर भी मार दिए जाए तो अल्लाह की कुदरत से वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और मुर्दा पानी अगर जिंदा आदमी पर लगाओ तो वो मर जाता है। जान चकरा गया। उसने कभी सुना भी न था कि जिंदा और मुर्दा पानी भी होते हैं। खुदा की कुदरत पर वो बड़ा हैरान हुआ। खुदा ने कैसी कैसी अजीब चीजें पैदा की हैं, और दिल में कहने लगा, उनको कहाँ तलाश किया जाए, किससे पूछा जाए। यही सोचता हुआ वो जंगल की तरफ चल दिया कि शायद कहीं जिंदा और मुर्दा पानियों के चश्मे बहते होंगे। वो चलता चलता जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कौवों का घोंसला था। वो सोचने लगा, अगर इस वक्त मेरे पास कौवे आ जाएं तो वो शायद उन अजीबो गरीब पानियों के मुतालिक कुछ बता सकते, लेकिन वो तो यहाँ अपने घोंसले में नहीं है। उसी लम्हे जान के आयन सर के ऊपर से आवाज आई, क्या पूछना चाहते हैं आप, बस हुक्म की देर है। ये वही कौवा और कवि थे जिनके बच्चों को जान ने जमीन से उठाकर घोंसले में रखा था। जान बोला, शहजादी के बाप ने मुझे जिंदा और मुर्दा पानी लाने को कहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये किस किस्म के पानी होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। कौवा बोला, हमें पता है, आप जरा यहीं ठहरें, हम थोड़ी ही देर में लेकर आते हैं। ये कहकर वो दरख्तों में गायब हो गए। जान ने कुछ देर इंतजार किया, फिर उसे परों की आवाज आई। कौवा और कवि आ गए थे। उनकी चूंचों में बड़े गूंगे थे। कौवे ने एक गूंगा जान के हाथ पर रखा और कहा, यह है जिंदा पानी। कवि ने दूसरा गूंगा जान के हाथ पर रखते हुए कहा, और यह है मुर्दा पानी। यह कहकर वो दोनों जिस तरफ से आए थे उसी तरफ को उड़ गए। जान किले की तरफ चल दिया, लेकिन कुछ ज्यादा दूर न गया होगा कि उसे एक मक्खी की चीख सुनाई दी। मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। एक बड़ी सी मकड़ी उसकी तरफ पड़ रही थी। जान ने मुर्दा पानी का एक कतरा मकड़ी पर डाला तो मकड़ी मर गई। उसने जिंदा पानी का एक कतरा मक्खी पर गिराया। मक्खी ने पर फैलाए और हवा में उड़ते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा किया जान कि मेरी जान बचा ली। अगर मैं मर जाती तो तुम्हें कोई भी न बता सकता कि बादशाह की 12 लड़कियों में सुनहरी बालों वाली लड़की कौन सी है। जब बादशाह ने देखा कि जान ने तीनों काम कामयाबी से कर लिए हैं तो उसने कहा, तुमने मेरी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब तुम सुनहरी बालों वाली शहजादी को ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें 12 शहजादियों में से सुनहरी बालों वाली शहजादी को पहचानना होगा। अगर तुम उसे पहचान न सके तो फिर वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। ये कहकर बादशाह जान को एक बड़े से कमरे में ले गया, जहाँ एक गोल मेज पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द 12 खूबसूरत लड़कियां बैठी थी।
उन सबके सर पर रुमाल बंधे हुए थे और बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही थी। बादशाह बोला, ये है मेरी 12 शहजादियां, इनमें से सिर्फ एक के बाल सुनहरी हैं। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो वो तुम्हारी हुई। जान हैरान होकर लड़कियों को देखने लगा। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। जान परेशान था कि किस लड़की को चुने। तब उसे अपने कान के नजदीक मक्खी के भुनभुनाने की आवाज आई। ये वही मक्खी थी जिसे उसने मकड़ी से बचाया था। उसने जान के कान में कहा, उठो और मेज के गिर्द एक चक्कर लगा। जान बारी बारी हर लड़की के पास गया। मक्खी हर बार उसके कान में कहती, ये नहीं, ये भी नहीं। आखिर उसने कहा, हाँ ये है, यही है, सुनहरी बालों वाली शहजादी यही है। जान ने उस लड़की की तरफ इशारा करके कहा, बादशाह सलामत, यह है सुनहरे बालों वाली शहजादी। बादशाह बोला, शाबाश, तुमने वाकई सुनहरी बालों वाली शहजादी को चुना है। अब ये तुम्हारी हुई। बादशाह ने अपनी लड़की को हुक्म दिया कि वो उठकर खड़ी हो और अपने सिर से रुमाल उतारे। शहजादी ने रुमाल उतारा तो उसके सुनहरी बाल झिलमिल झिलमिल गिरने लगे। जान की आंखें चुंधिया गई। अगले दिन जान बहुत से मुलाजिमों और सामान के साथ शहजादी को लेकर रवाना हुआ। जब ये जुलूस जान के देश में दाखिल हुआ तो बादशाह खिड़की से बाहर देख रहा था। रंग बिरंग के कपड़ों, घोड़ों और सामान को देखकर पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन जब उसकी नजर जान पर पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन इसके साथ ही उसे ये ख्याल भी आया कि अगर जान ने शहजादी से खुद शादी करनी चाही तो फिर उसको किस तरह रोका जाएगा। जान शहजादी का हाथ थामे हुए बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। उसे पूरा यकीन था कि इतने बड़े कारनामे पर बादशाह तारीफ के 2-4 कलमे जरूर कहेगा, लेकिन तारीफ तो एक तरफ रही। उसने तो जान के सलाम का जवाब तक न दिया। माथे पर पल डालते हुए बोला, कल मैं शहजादी से शादी करूंगा और तुम चूंकि अपनी मुहिम में कामयाब वापस आए हो, इसलिए तुम्हारी लाश निहायत इज्जत से शाही कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। बादशाह के इशारे पर सिपाहियों ने जान को गिरफ्तार कर लिया और उसे घसीटकर जेल खाने में ले गए। शहजादी ने बहुत मिन्नत और समाजत की कि जान को छोड़ दिया जाए, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन जबकि शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थी, जान को बादशाह के हुजूर पेश किया गया और सबके सामने उसका सर कलम कर दिया गया। तब शहजादी ने बादशाह से दरख्वास्त की कि जान की लाश उसे दे दी जाए ताकि वो उसे अपनी मर्जी से दफन कर सके। बादशाह ने शहजादी को खुश करने के लिए उसकी बात मान ली। शहजादी के बाप ने शादी के सामान में जिंदा और मुर्दा पानियों के गूंगे भी रख दिए थे। शहजादी ने जिंदा पानी जान की लाश पर छिड़का तो देखते ही देखते जान का सर धड़ के साथ जुड़ गया। फिर वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और कलमा पढ़ा। अब वो पहले से ज्यादा जवान और खूबसूरत नजर आ रहा था। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि अगर ये पानी वो भी अपने ऊपर डाल ले तो वो भी जान की तरह खूबसूरत और जवान हो जाएगा। उसने शहजादी को हुक्म दिया कि उसके जिस्म पर भी यही पानी छिड़का जाए। बादशाह को इस बात का इल्म न था कि जिंदा पानी वाला गूंगा खाली हो चुका है। शहजादी ने मुर्दा पानी वाला गूंगा उठाया और बादशाह पर छिड़क दिया। बादशाह फौरन ही मर गया। जब लोगों को बादशाह की मौत का इल्म हुआ तो उन्होंने जान को अपना बादशाह बना लिया। उसने बड़ी धूमधाम से शहजादी से शादी की और इस शादी में उसके जानवर दोस्त भी शरीक थे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा हिस्सा बन जाए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।